Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this is the fourth part of applications of trigonometry and आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से. So question number 14 is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See in figure 9.13 and find the distance traveled by the balloon during the interval. Clear? So basically क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई भी एक टॉल गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर. कितना है? 1.2 मीटर. कर रही इसने एक बलून को स्पॉट किया कि वो बलून कहाँ पर था. लेट दिस इज द बलून. इस गर्ल ने इस बलून को स्पॉट किया. क्लियर? और इस बलून की हाइट कितनी थी ग्राउंड से? 88.2 मीटर. 88.2 मीटर फ्रॉम द ground, and after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. तो क्या कर रहा है? बलून थोड़ा इस साइड मूव कर रहा है. गॉट इट? लाइक दिस. अब वो बलून कहां पर है? इस पॉइंट पर. तो इस गर्ल की जो आई से एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री. यानी कुछ एक लाइन ऐसे रही होगी पैरेलल टू द सरफेस. क्लियर? तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज द 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. गोट इट? अभी ये जो हाइट है दिस इज द 1.2 मीटर हाइट ऑफ द कर्व. ऑल्सो 1.2 मीटर. और ये टोटल कितना था? 88.2 मीटर. 88.2 मीटर. अगर इस गर्ल की हाइट को रिड्यूस करते देन द रिमेनिंग हाइट विल बी 87 मीटर. 87 मीटर. क्लियर जी? तो बोल रहा है कि उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो जरा ऑब्जर्व करो. इसका नाम ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, द पॉइंट डी एंड द पॉइंट ई अगर आप मेंशन करते हो तो आपको क्या फाइंड करना है? बेसिकली बी टू ई. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी टू ई. क्लियर? तो जरा यहां पर ध्यान से देखिए, हमारे पास दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रखा है. ट्राइंगल ए सी बी, triangle ACB and the triangle DCE, triangle DCE. तो triangle DCE से हम CE फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली एंड ट्राइंगल ACB से हम BC फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून कितना होगा? दैट इज बी टू ई. और बी टू ई कितना है? किसके इक्वल है? बी टू ई इज इक्वल टू, अगर आप सी ई फाइंड आउट कर लेते हो और सी ई से बी सी माइनस कर दो. ठीक है ना? सी ई माइनस सी बी. सी ई माइनस सी बी यानी इस सी ई से सी बी माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? बेसिकली बी ई. तो ये सी ई कहां से आएगा? सी ई आ रखा है फ्रॉम ट्राइंगल डी सी ई एंड दिस इज फ्रॉम द ट्राइंगल ए सी ई. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल डी सी ई या डी ई सी लाइक दिस DCE, D
CE. This is the 87 meter and this is not given, you have to find out, and the angle is 30 degree. So base perpendicular using tan theta, that is tan 30 is equals to perpendicular over base, perpendicular over base. Tan 30 is 1 over root 3 is equals to 87 over CE. Now after simplification, CE is equals to 87 root 3 meter. 87 root 3 meter. Now from triangle ACE, from triangle ACE, ACE, AE is also 87 meter. This is the 60 degree base and perpendicular. Using base perpendicular relation, tan theta, theta is 60. So tan 60 is equals to perpendicular over base. Tan 60 is root 3. Root 3 is equals to 87 over CE. Now, sorry, CB. Clear? CB. So CB is equals to 87 over root 3 meter. 87 over root 3 meter. So distance traveled by the balloon is BE, and BE is equals to CE minus CB, and CE is 87 root 3 minus CB is 87 over root 3 meter. After simplification, 87 into LCM लोगे तो 3 माइनस 87 ओवर रूट 3. 83 से 83 कॉमन ले लो, यहाँ से 83, इधर भी 83 है. तो आफ्टर टेकिंग 87 एंड आफ्टर टेकिंग 87 कॉमन, you will get 3 minus 1 over root 3. It will become 87 into 2 over root 3 meter. Root 3 meter. Clear? Now, if you want to simplify it, then 87 into 2 into root 3 over 3. Cancel out this and you will get 3 2 ja 6, 2 carry, 9 3 ja 27. Clear? And you will get 58 root 3 meter. 58 root 3 meter. That is the distance traveled by the balloon. Clear? Okay, note down. Now question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. It means क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक टावर है, क्लियर, और इस टावर से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर यहां पर कोई कार है और इस टावर पर कोई मैन एक खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उसकी आइज से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस कार पर इनिशियली कितना है, दैट इज 30 डिग्री. कितना है? 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री. बट एट सम टाइम लेटर, if the car moves towards this tower, the angle become 60 degree. The angle of depression becomes
60 degree. So this is the angle 60 degree, and we already know that the angle of depression is equals to angle of elevation. ठीक है ना, पॉइंट A, B एंड पॉइंट P to P1, यानी वो कार इस पॉइंट P1 पर थी और उसने इस P1 से P2 पर आने के लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा उसको, 6 सेकेंड्स। उसने बोला कि जो स्पीड ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म है, यानी कार की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब जो स्पीड यहां पर रही होगी वही स्पीड सेम यहां पर रही होगी। तो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर पर आवर। कितना है, x किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां की जो स्पीड है वो भी x किलोमीटर पर आवर रही होगी और यहां पर जो स्पीड है वो भी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। सो ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, तो 6 इंटू x किलोमीटर पर आवर। सो P2 टू P1 इज इक्वल टू 6x, कितना है 6x। अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हो और डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं, स्पीड से, एंड यू विल कैन इजिली गेट द टाइम। सो टाइम टेकन बाय कार टू कवर BP2 डिस्टेंस कितना होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो क्या करना है, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यानी AB, ये AB जो डिस्टेंस है दिस इज द कॉमन डिस्टेंस या कॉमन हाइट इस ट्राइंगल और ट्राइंगल ABP1 के अंदर। तो इसको हाइट को H लेट कर लो। सो फ्रॉम ट्राइंगल ABP2 the angle is 60 degree and this is the height H, base and perpendicular, using tan theta, tan 60 is equals to perpendicular over base. Now height H is equals to tan 60 is √3 into BP2 is equals to height H is equals to height H. Now from the triangle ABP1, from triangle ABP1 angle is 30 degree, ABP1, this is the height H, using tan theta, that is tan 30 is equals to perpendicular over base. बेस कितना है, ट्राइंगल ABP1, तो ABP1 में जो बेस BP1 है कितना है, ये हमारे पास है BP2 प्लस 6x, क्लियर। सो बेस इज BP2 प्लस 6x and tan 30 is 1 over √3 is equals to H over BP2 plus 6x. After simplification, BP2 plus 6x over √3 is equals to H, is equals to H, यानी जो हाइट है यहां पर और जो हाइट है यहां पर both are same, both are same. So अगर आप इनको इक्वल टू यानी इन दोनों को इक्वल कर दो
इक्वल रखते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, BP2, क्या आएगा, BP2। यानी इनको क्या करते हैं, आपस में इक्वल रखते हैं। सो BP2 प्लस 6x ओवर √3 इज इक्वल टू कितना, किसके इक्वल होगा, √3 इंटू BP2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, √3 इंटू √3 इज 3, सो BP2 प्लस 6x इज इक्वल टू 3 BP2। इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो 3 BP2 माइनस 1 BP2 इज 2 BP2, यानी 6x इज इक्वल टू BP2। क्लियर, 2 ऑफ BP2 एंड ट्वाइस टाइम्स ऑफ BP2। 2 से 6 कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, सो BP2 विल बी 3x। तो जो डिस्टेंस था BP2, यानी ये जो डिस्टेंस है आपके पास BP2 इज 3x, कितना रखा है, 3x, तो ये डिस्टेंस हुआ आपके पास 3x, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर दिस डिस्टेंस इज, तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 3x, टाइम इज सॉरी स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड्स, कितना हुआ 3 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस BP2 at the uniform speed is 3 seconds, is 3 seconds. So please note it down. Now the question number 16 is the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. मीन्स क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक टावर है, अगर उस टावर के फुट से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर, दैट इज 4 मीटर, और किसी सेकंड पॉइंट दैट इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसे, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्लियर, यानी जो एंगल ये और जो एंगल ये एलिवेशन हो, ठीक ना, यानी बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, लेट करो कि एंगल हमारे पास कितना है थीटा, और इसको हमने क्या लेट कर लिया फाई, क्या लेट कर लिया फाई, इसको नाम में आंसर करते A B पॉइंट C एंड D। सो गिवन कैसा है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई, यानी थीटा कितना है 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई, both are the complementary, ठीक है ना, and you have to prove that, you have to prove that height of the tower that is AB is equals to 6 मीटर। आपको प्रूफ करना है कि इसकी हाइट कितना है 6 मीटर, दिस इज टावर। क्लियर, तो क्या है कि हमारे पास यहां पर भी बेसिकली दो ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन हो रखा है, ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक कॉमन हाइट है, दैट इज AB, और आपको वो क्या करना है, प्रूफ करना है, दैट इज 6 मीटर। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC
BC is 4 meter and this is 90 minus 5. So using base and perpendicular relation, that is tan theta is equals to perpendicular over base and theta is 90 minus 5. 90 minus 5 is equals to AB over BC. Base is 4. Here 90 minus theta. So tan 90 minus theta कितना होता है? tan 90 minus theta कितना होता है? cot theta. कितना होगा? cot theta. यानी tan 90 minus theta is cot theta. This is the property. So यहां पर हमारे पास क्या है? tan 90 minus 5. तो कितना होगा? cot 5. कितना होगा? cot 5. That is AB over 4. AB over 4. Now from triangle ABD, from triangle ABD, the angle of elevation is 5 and BD is 9 meter. BD is 9 meter. Now using perpendicular base relation, that is tan theta is equals to कितना होगा? perpendicular over base BD and theta is 5. तो tan 5 is equals to AB over BD. BD is 9 meter. BD is 9 meter. Now so tan 5 को हम लिख सकते हैं 1 upon cot 5. क्या लिख सकते हैं? 1 upon cot 5. tan 5 will become 1 upon cot 5 is equals to AB over 9. So cot 5 की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर सकते हो आप, ठीक है ना, या फिर इसका रेसिप्रोकल करिए तो इट विल बिकम कितना कि cot 5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहां से 9 over AB. 9 over AB. So cot 5 यहां पर कितना था? AB over 4. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. यहां से आपको कितना मिलता है? cot 5 9 over AB. This is the equation second. So cot 5 is equals to cot 5 from equations first and second. So from equation first and second, cot 5 is equals to cot 5. तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, यानी दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस. यू विल गेट AB over 4 is equals to 9 over AB. After simplification, AB into AB, cross multiply ना, AB into AB is AB square is equals to 9 4 जा 36. 9 4 जा 36 and AB will become 6 meter. AB is equals to 6 meter, जो क्या क्या करना था आपको? प्रूफ करना था. तो इस टावर की हाइट कितनी आ गई आपके पास? 6 मीटर. ये आपने यहां पर क्या किया है? प्रूफ. सो नोट इट डाउन. और ये था हमारी एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ एनी क्वेरी occurs, you may comment in the comment box. Thank you. Do like, share and comment.